ಯೇಸುಕ್ರಿಸ್ತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ WSS ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ WSS ಕೂಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಯ್ಯ ಅಮ್ಮನವರು ನಮಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕೂಟಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಅಯ್ಯ ಅಮ್ಮನವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಮೀಟ್ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮ WSS ಕೂಟವನ್ನು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಾತ್ಪರನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವವನು, ಸರ್ವಶಕ್ತನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತನಾಗಿರುವನು. ಹೌದು ತಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಮೊರೆ ಹೊಕ್ಕಿರುವವರೆಲ್ಲರೂ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚದಂತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನ ಪಕ್ಕಗಳ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಥ ಕೂಟಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ WSS ಕೂಟದ ಆದಿಯು ಮಧ್ಯವೂ ಅಂತ್ಯವೂ ನೀನಾಗಿದ್ದು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ವಾಮಿ ಕರ್ತನೆ, ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸಹಾಯಕನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಅಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಾಮಿ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಮಾದರಿಯ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಜೀವಿಸುವಾಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಕ್ಷಕ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ನಿನಗೆ ಒಪ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ ಕರ್ತನೆ. ಆಮೆನ್. ಆರಾಧನೆ ಗೀತೆಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆರಾಧನೆ ಬುಕ್ಕಿಂದ 211 ರಾಗ ಆಡೋಣ. बीच में का सब गैप निकाला ला लो. ಮೊಗ್ಗರಳಿತು ಹೂವಾಯಿತು ಫಲಕೊಟ್ಟಿತು ದೇವಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದೇನು ದೇವಾ. ಮೊಗ್ಗರಳಿತು ಹೂವಾಯಿತು ಫಲಕೊಟ್ಟಿತು ದೇವಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದೇನು ದೇವಾ. ಲಲಲಲ ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಯು ನೀನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವೆ ನಾನು, ತೋಟಗಾರನು ನೀನೇ, ಅಧಿಕ ಹಣ್ಣು ನಾನು ದ್ರಾಕ್ಷಾಲತೆಯು ನೀನೇ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿರುವೆ ನಾನು, ತೋಟಗಾರನು ನೀನೇ, ಅಧಿಕ ಹಣ್ಣು ನಾನು. ಮೊಗ್ಗರಳಿತು ಹೂವಾಯಿತು ಫಲಕೊಟ್ಟಿತು ದೇವಾ, ನಾನಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದೇನು ದೇವಾ. ಲಲಲಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬಾನೀನೇ, ಕೊರತೆ ಪಡೆನು ನಾನು, ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬಾನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಹಿಂಡು ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯ ಕುರುಬಾನೀನೇ, ಕೊರತೆ ಪಡೆನು ನಾನು, ಒಬ್ಬನೇ ಕುರುಬಾನೀನೇ, ನಿನ್ನ ಹಿಂಡು ನಾನು. ಮೊಗ್ಗರಳಿತು ಹೂವಾಯಿತು ಫಲಕೊಟ್ಟಿತು ದೇವಾ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಲ್ಲಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾದೇನು ದೇವಾ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂದಿ ರಾಗವನ್ನು ಆಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ.
74 नीले आसमां के पार जाएंगे। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेगा सारा जहां, और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसका कोई भी वादा न होगा अधूरा, हर एक वादा उसका होता है पूरा। उसका कोई भी वादा, उसके आने का वादा होगा पूरा, और देखेगा सारा जहां। उसका आने का वादा होगा पूरा, और देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेगा सारा जहां, और देखेगा सारा जहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ये विश्वास मेरा भी होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, ये विश्वास मेरा भी होगा पूरा, सपना ये मेरा ना रहेगा अधूरा। ये विश्वास मेरा, फिर हम संग रहेंगे अपने यीशु के, और देखेगा सारा जहां। फिर हम संग रहेंगे अपने यीशु के, और देखेगा सारा जहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, और देखेगा सारा जहां, और देखेगा सारा जहां। थैंक यू। Everyone, today's scripture reading from the book of Isaiah, chapter 43, verses from 18 to 21. But the Lord says, do not cling to events of the past or dwell on what happened long ago. Watch for the new thing I am going to do. It is happening already. You can see it now. I will make a road through the wilderness and give you streams of water there. Even the wild animals will honor me. Jackals and ostriches will praise me. When I make rivers flow in the desert to give water to my chosen people. They are the people I made for myself, and they will sing my praises. Amen. हाय, प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना को करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद हो राजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, सुंदर से समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। लॉर्ड पिता परमेश्वर, एक नया योजना को दिया आपने WSS ऑनलाइन सर्विस पिता परमेश्वर स्टार्ट करने का, आपको धन्यवाद प्रजा। लॉर्ड पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को और सुनने वाले सभी को और इस वचन को आपके हाथों में देती हूँ राजा। आपकी पवित्र आत्मा की पिता सहायता से आप हमें चलाएंगे, विश्वास करते हुए आगे के समय को आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, आमीन। आइए, जैसे हमने वचन को पढ़ा है, इंग्लिश में ऑलरेडी पढ़ा गया है, तो हम हिंदी में एक बार इसे पढ़ेंगे। यशाया का किताब 43वां अध्याय, यशाया का किताब 43वां अध्याय 18 से लेकर 21 वचन। आइजाया चैप्टर 43 वर्स 18 to 21 तक हम पढ़ेंगे। हिंदी में एक बार हम पढ़ेंगे।
अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। देखो, मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी। क्या तुम इससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करें। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अभी जो है हम लोग लॉकडाउन में है, लेकिन जो है कॉमन ये है कि हम वुमेन्स को जो है हमेशा से जो है कुछ नई बातें हमें पसंद आती है। अगर आपके हस्बैंड आपको कुछ नया चीज ला कर दे तो हम बहुत खुश हो जाते हैं, या फिर हमें कोई सरप्राइज मिले तो हम खुश हो जाते हैं। कोई भी नया चीज को देखकर जो है हमेशा जो है लेडीज को बहुत खुशी मिलती है, या फिर बहुत खुश हो जाता है कुछ अगर नया चीज हमारी लाइफ में मिल जाए तो यहाँ पर जो है अभी पिछले 4-5 महीने से हम लोग घर पर है, लॉकडाउन है, पूरा फैमिली साथ में है। तो इस सिचुएशन में भी जो है हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ तो नया हमारे लाइफ में होना चाहिए। मुझे पता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स को हम लोग फेस कर रहे हैं, सबके घर के अलग अलग परेशानी है, अलग अलग तकलीफें हैं। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि कुछ तो जो है परमेश्वर या फिर कुछ तो हमारे जीवन में कार्य हो। तो यहाँ पर जो है आगे हम देखते हैं कि किस तरह से इस वचन से परमेश्वर हमें बताना चाहता है कि वो हमारे जीवन में क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या ऑलरेडी उन्होंने किया है हमारे लाइफ में। तो अगर 20वां वचन मैं पढ़ूं, जरा हम पीछे से स्टार्ट करेंगे। तो 20वां वचन अगर हमने पढ़ा है और एक बार पढ़ेंगे। गीदड़ और शुतुरमुर्ग आदि जंगली जंतु मेरी महिमा करेंगे, क्योंकि मैं अपनी चुनी हुई प्रजा के पीने के लिए जंगल में जल और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि उसके चुने हुए लोगों के लिए जो है वो निर्जल देश में जल को बहाएगा और जंगल में जो है वो पानी को देगा। उसके चुने हुए लोग आज कौन है? उस समय में जो है मिस्र देश में जो इजरायली लोग थे, इजरायली लोग जो है परमेश्वर के लिए उसके अपने लोग थे, उसके चुने हुए लोग थे। लेकिन आज जो है सभी मसीह लोग जो है परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो परमेश्वर कह रहा है कि उसके चुने हुए लोगों के लिए जो है वो जो है निर्जल देश में भी जो है जल को बहाएगा, जंगल में भी जो है पानी को बहाएगा। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है मेरे अपने लोग, मतलब परमेश्वर जो है हमारे बारे में सोचता है, वो हमारे बारे में चिंता करता है। अभी ऐसा हुआ है कि ये 4-5 महीना इतना हम लोग प्रॉब्लम्स में फंसे हैं, चारों तरफ हमें तकलीफें दिखाई दे रही है। तो हमें लग रहा है कौन है जो हमारे बारे में सोचता है, कौन हमारी चिंता को करता है। स्पेशली हर एक वुमेन्स के दिमाग में ये हमेशा आता है जब वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है अपने घर को लेके, अपने घर के कामों को लेकर। क्योंकि वुमेन एक ऐसा उनका नेचर है, वो सबके लिए सब कुछ कर देती है, परिवार को देखती है, सब कुछ मैनेज कर लेती है। भले ही उसका हेल्थ सही ना हो, बीमार हो, फिर भी जो है अपने बच्चों के लिए वो सब कुछ करती है, अपने परिवार के लिए वो सब कुछ करती है। लेकिन कई बार जो है एक नेगेटिव थॉट हमारे मन में आ जाता है कि मैं सबके लिए सब कुछ करती हूँ, लेकिन मेरे लिए करने वाला कौन है, मुझे देने वाला कौन है, मेरा देखभाल करने वाला कौन है। ये हमेशा जो है कहीं ना कहीं एक ना एक बार जरूर ये हमारे दिमाग में आया होगा, सभी के दिमाग में आया होगा, जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पर जो है इस लॉकडाउन में भी जो है सभी के फैमिली जो है अलग अलग परेशानी में डूबा है। किसी का जॉब गया है, या फिर कोई लोग जो है फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। किसी ने सेविंग किया था, लेकिन वो सेविंग जो है खत्म होने पर है। किसी के घर पे राशन तक नहीं है ताकि वो लोग अनाज को जो है आगे के लिए रख सके, या फिर खाने तक का जो है वो परिस्थिति भी उनके पास नहीं है। या फिर किसी का जो है ऐसा परिस्थिति है, शायद आप कभी बीमार नहीं गिरे थे, लेकिन इस लॉकडाउन में बहुत लोग बीमार गिर रहे हैं, बहुत लोगों की तबीयत बिगड़ रही है। तो ऐसा अलग अलग परिस्थिति सभी घरों का है, सभी लोग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को जो है फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये बात आया होगा, ऐसी सिचुएशन में जो है
कौन है जो मेरे बारे में सोचता है, कौन है जो मेरी देखभाल को करना चाहता है, या फिर कौन मेरी चिंता को करता है। ये वचन हमें कहता है कि परमेश्वर है जो आपकी चिंता करता है, परमेश्वर है जो आपको जो है आपकी देखभाल करता है या फिर आपके बारे में सोचता है, क्योंकि उसका कंसर्न है, वो आपके बारे में चिंता करता है। इसलिए वो कहता है कि मेरे चुने हुए लोगों के लिए जो है मैं जंगल में भी जो है पानी को बहाऊंगा, या फिर निर्जल देश में भी जो है जल को जो है दे दूंगा करके वो कहता है। तो यहाँ पर हम जो है परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे घर में जो रहता है, हम सोचते हैं कि ये मेरे लिए वो करना चाहिए, ये मेरे लिए ऐसा करना चाहिए। हमारा जो थिंकिंग है या फिर सोच है सिर्फ अपने लोगों के सीमित है। मेरा पति मेरे लिए ऐसा करना चाहिए, मेरे बच्चे मेरी बात को मानना चाहिए, मुझे उल्टा नहीं बोलना चाहिए, जब मैं बीमार गिरूं तो मुझे बोलते ना मेरी देखभाल को करना चाहिए। ये सब चीजें हम सोचते हैं, लेकिन हम किससे एक्सपेक्ट करते हैं? ये सब हमारा परिवार से, या फिर हमारे रिश्तेदार से, हमारे आसपास से में रहने वाले से, या फिर हमने किसी को कभी मदद किया है, ऐसे लोगों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जब मैं मुसीबत में हूँ वो मेरे लिए कुछ करे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं, भले ये लोग हमारे लिए कुछ ना करे, लेकिन एक इंसान है जो हमारी मदद को कर सकता है, वो है परमेश्वर। हम मसीह लोग हैं, हम हमेशा बाइबल को पढ़ते हैं, वचन को सुनते हैं, आराधना को करते हैं। कितने ही बार वचन को हमने सुना है, कितने ही बार हमने सोचा है कि नहीं परमेश्वर तू भले ही कोई मेरे साथ ना रहे लेकिन आप मेरे साथ रहेंगे। कितनी बार हमने इस बात को भी कहा होगा, लेकिन ऐसी कुछ मुसीबत आती जो है हम फिर से भूल जाते हैं कि परमेश्वर एक इंसान है जो आपके बारे में चिंता करता है या फिर आपके बारे में वो सोचता है। क्योंकि वचन कहता है, वो कहता है, परमेश्वर कहता है तुम मेरे चुने हुए लोग हैं। अगर हम उसके चुने हुए लोग हैं तो वो आज भी जो है इस लॉकडाउन में भी आपके जीवन में कार्य करने पर है। आज भी वो आपके बारे में सोच रहा है, आज भी वो आपकी चिंता को करता है। जो एक्सपेक्टेशन आपने अपने घर वाले से रखा है, जो एक्सपेक्टेशन आपके बच्चों से है, परमेश्वर जो है, हम परमेश्वर को भूल चुके हैं। भले ही हमारे हस्बैंड जो है, आपके हस्बैंड आपका एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करे, आपके बच्चे आपके एक्सपेक्टेशंस को पूरा ना करे, लेकिन एक इंसान है जो आपकी सारे एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकता है, वो है परमेश्वर। लेकिन सिचुएशन ऐसा है कि हमने परमेश्वर भूल गए हैं। हमारा एक्सपेक्टेशन सिर्फ घर से है कि ये लोग मेरे लिए कुछ करना चाहिए, वो लोग घर में मेरे लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन परमेश्वर ये वचन से याद दिलाना चाह रहा है, मैं आज भी तुम्हारी चिंता करता हूँ, आज भी तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। इस लॉकडाउन में भले ही तुम लोग मुसीबत में हो, फिर भी जो है मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, और मैं तुम्हारे लाइफ में कुछ नया करने के बारे में सोच रहा हूँ। लेकिन हमें जो है इस बात को फिर से याद करना जरूरी है। भले अभी तक हम भूल गए हैं, हम प्रार्थना करते हैं, कभी याद है हम प्रार्थना करते हैं, नहीं परमेश्वर तू मेरे साथ है, आप मेरे लाइफ में कुछ कार्य को करेंगे, ये मुझे विश्वास है। आप मुझे इस लॉकडाउन में संभालोगे, चलाओगे, मेरे घर को चलाओगे, मैं विश्वास करती हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं फिर एक बार हम लोग जो है परेशानी को देखते ही हम लोग जो है टूट जाते हैं, या फिर जो है परमेश्वर के उस कार्य को हम लोग भूल जाते हैं। कितने ही कार्य परमेश्वर ने शायद हमारे जीवन में किया होगा, पहले बहुत सारे अद्भुत कार्य को किया होगा, बहुत सारे गवाहियों को हमने चर्च में या फिर अपने लोगों के बीच में हमने बांटा है। लेकिन फिर भी कोई भी नया प्रॉब्लम आ जाए तो हम फिर जो है सोचते हैं कि कौन मेरे लिए करेगा, कौन मेरे बारे में सोचता है। लेकिन परमेश्वर इस वचन से कहता है, तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तो मैं तुम्हारे लिए जो है चिंता करता हूँ, सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। तो इस बात को आप याद रखें कि इस लॉकडाउन में भले ही आपको लगे कि आपका परिवार आपको नहीं समझ रहा है, आपके बच्चे आपको नहीं समझ रहे हैं, बहुत सारे तकलीफ है, मैं किसको जाकर बताऊं, किससे शेयर करूं, लेकिन आपको ये याद रखना जरूरी है। और फिर से परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है कि वो तुम्हारी चिंता को करता है, वो तुम्हारे बारे में सोचता है। उसके बाद अगर हम 19वां वचन देखेंगे, मैंने जैसे कि कहा हम उल्टा जाएंगे, तो 19वां वचन अगर हम देखेंगे, यहाँ पर लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर कहता है कि मैं एक नई बात करता हूँ। इंग्लिश में इस तरह से लिखा है, वॉच फॉर द न्यू थिंग
आई एम गोइंग टू डू, मतलब उस नए चीज को देखो जो मैं करने पर हूँ या फिर मैं करने वाला हूँ। और आगे इस तरह से लिखा, इट इज हैपनिंग ऑलरेडी, यू कैन सी इट नाउ, वो ऑलरेडी हो रहा है, आप उसे देख सकते हो करके। और उसके बाद उस तरह से लिखा है, आई विल मेक अ रोड थ्रू द विल्डरनेस, जंगल में जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि जंगल में मैं रास्ते को बनाऊंगा, और एंड गिव यू स्ट्रीम्स ऑफ वाटर देयर, वहां पर जो है रेगिस्तान में जो है मैं नदियों को बहाऊंगा। हिंदी में इस तरह से लिखा है कि देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम इससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। कहता है जंगल में मैं मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में जो है नदियां बहाऊंगा। परमेश्वर कुछ तो शायद प्लान किया है हमारे लिए, शायद अब तक आपके लाइफ में वो प्लान हुआ नहीं है, या फिर आप वो देख नहीं पा रहे कि परमेश्वर आपके लाइफ में क्या ऐसी नई बातें हैं जो करने चाहता है या फिर करने वाला है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर दो बातों को कह रहा है, जंगल में वो रास्तों को बनाएगा और रेगिस्तान में जहाँ पर पानी मिलना मुश्किल है, उस जगह पर परमेश्वर कहता है कि मैं नदी को बहाऊंगा करके। अगर आप देखोगे ये दोनों ही इम्पॉसिबल चीज है। जंगल में चारों ओर सेम दिखता है, आपको रास्ता कभी नहीं मिलेगा। अगर जंगल में आपको छोड़ दिया जाए, बाहर आना मुश्किल है। मतलब ऐसी इम्पॉसिबल चीज में जो है परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए रास्ता को बनाऊंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है रेगिस्तान में जो है मैं तुम्हारे लिए नदियां को बहाऊंगा, जहाँ पर पानी मिलना मुश्किल है उस जगह पर परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे लिए नदी को बहाऊंगा। मतलब परमेश्वर ये आपको याद दिलाना चाह रहा है फिर से कि भले ही तुम्हारी परेशानी बहुत सारी है, चारों तरफ केवल और केवल आप प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, आपको लग रहा है मेरे पूरे चारों ओर जो है सिर्फ तकलीफें हैं मेरे लाइफ में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो है प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है इस प्रॉब्लम में भी जो है मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता को निकालूंगा। शायद हमारी नजर से हम नहीं देख पा रहे हैं कि वो क्या रास्ता है, हमारे लिए सिर्फ हमारा परेशानी दिख रही है, लेकिन परमेश्वर कहता है जंगल में मैं रास्ते को बनाऊंगा। मतलब तुम्हारे परेशानी में भी जो है परमेश्वर एक रास्ते को निकालने पर है। उस रेगिस्तान में परमेश्वर कहता है कि मैं नदी को बहाऊंगा। मतलब जो असंभव है उस चीज को परमेश्वर तुम्हारे लाइफ में संभव करने के लिए तैयार है। आज आपके हस्बैंड के जॉब नहीं है, परमेश्वर जो है उस असंभव चीज को जो है संभव करने पर है। अगर आज जो है परमेश्वर आपके लाइफ, आप बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को देख रहे हैं, शायद घर में शायद कल के लिए कुछ बचा नहीं है, कल आप कैसे निकालोगे पता नहीं है, परमेश्वर उस असंभव चीज को भी जो है संभव करने पर है। परमेश्वर कुछ तो ऐसे कार्य करने पर है आपके लाइफ में, कुछ तो प्लान परमेश्वर आपके लिए रखा है या फिर वो कर रहा है जो हमें नहीं दिख रहा है। क्योंकि वचन कहता है वॉच फॉर द न्यू थिंग, मतलब उस नई चीज को देखो जो मैं करने वाला हूँ या फिर करने पर हूँ, वो ऑलरेडी हो रहा है, वो ऑलरेडी हो रहा है। लेकिन अब हम लोग जो है प्रॉब्लम्स, हमारे प्रॉब्लम्स के वजह से नहीं देख पा रहे। आज हम लोग जो है परमेश्वर का वचन कहता है कि वो नई चीज को करने पर है, लेकिन हम जो है हम खुद से जो है उन नई बातों को हमारे लाइफ में होने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमारा सिर्फ नज़र जो है हमारे प्रॉब्लम्स पर है। मेरे पति को जॉब नहीं है उस पर है, मैं फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हूँ उस पर है, मेरा घर कैसे चलेगा उस पर है, हेल्थ इश्यूज हो रहा है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद हेल्थ इश्यूज हो रहा है, उस पर मेरा नज़र है या फिर मेरा चिंता उस पर है। इसलिए जो है हम उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हैं जो परमेश्वर हमारे लाइफ में करना चाह रहा है, या फिर परमेश्वर ऑलरेडी उस कार्य को स्टार्ट किया है। प्रार्थना तो हम लोग कर रहे हैं डेली कि परमेश्वर तो मेरे लाइफ में कार्य को कर, मेरे पति को जॉब मिलने दे, मेरे घर में जो है तू कार्य कर, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है इसको दूर हटा दे, हेल्थ इश्यूज़ को निकाल दे। प्रार्थना तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मन में वही चिंता कुछ चल रहा है कि घर कैसा चलेगा मेरा, आगे मैं कैसे रहूँगी, या फिर कौन जो है मेरी मदद को करेगा करके। ये सब चिंता है जो परमेश्वर का कार्य हमारे लाइफ में होने से जो है वो रोक रहा है। तो परमेश्वर कहता है कि फिर से एक बार याद दिलाना, मैं तैयार हूँ तुम्हारे लाइफ में नई चीज़ों को करने के लिए। सिर्फ जो है हमें परमेश्वर को जो है, अगर हम प्रार्थना कर रहे हैं कार्य करने के लिए, या फिर परमेश्वर तू मेरे लाइफ में कार्य कर, तो हमारा ध्यान उस पर होना ज़रूरी है, हमारे परेशानी में नहीं। परमेश्वर आप कार्य करेंगे ये मेरा विश्वास है, इस बात को मानकर चलना ज़रूरी है।
प्रार्थना करके फिर से वही हमारी बातों को याद करना या फिर हमारी चिंताओं में खो जाना, ये हल नहीं है। परमेश्वर फिर से एक बार याद दिलाना चाहता है कि मैं तुम्हारी चिंता को करता हूँ, तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तो मैं तुम्हारी लाइफ में नई चीज़ को भी करने पर हूँ। मैं ऑलरेडी उस कार्य को शुरू कर चुका हूँ, लेकिन हम लोग जो है देख नहीं पा रहे हैं। जंगल में अगर मैं रास्ता को निकाल सकता हूँ, तो तुम्हारे परेशानी में भी जो है तुमको सल्यूशन दे सकता हूँ। अगर रेगिस्तान में अगर मैं नदी को बहा सकता हूँ, तो तुम्हारे लाइफ में भी असंभव को जो है मैं संभव को कर सकता हूँ। इस बात को परमेश्वर याद दिलाना चाहता है। तो इस बात को जो है हम इसको याद रखें और आगे जो है हम हमेशा हमारी प्रार्थना में जो है या फिर हमारे जीवन में जो है इसको हमेशा याद रख के हमारे परेशानी में इसे फॉलो करें। उसके बाद 18वां वचन इस तरह से कहता है, बट द लॉर्ड सेज डू नॉट क्लिंग टू इवेंट्स ऑफ द पास्ट। परमेश्वर कहता है अपनी जो आपके लाइफ में जो पुरानी बातें हुई है उसको पकड़ के मत रखो, और ड्वेल ऑन व्हाट हैपेंड लॉन्ग एगो। जो ऑलरेडी आपके लाइफ में हो गया है उसी को लेकर मत बैठो, ऐसे पकड़ के मत रह, अरे ऐसा हुआ था ना, ऐसा हुआ था। हिंदी में इस तरह से कहता है, आप बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो, ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। जो ऑलरेडी हो चुका है, बुरा हो चुका है, क्या हो चुका है आपके लाइफ में, उसको कभी भी जो है पकड़ के नहीं रखना है। हो गया तो हो गया। अगर कुछ ऐसी कुछ बात है जो बहुत पहले आपके लाइफ में हुआ था, उसको वापस याद नहीं करना है, उसी के बारे में सोचते नहीं रहना है करके परमेश्वर कहता है। परमेश्वर जो है अच्छे कार्य को भी आपके लाइफ में किया होगा। ऐसा नहीं कहती हूँ कि अगर पास्ट में या फिर पहले आपके जीवन में परमेश्वर ने बहुत सारी प्रार्थनाओं का उत्तर परमेश्वर ने दिया, बहुत सारे अद्भुत कार्य आपके लाइफ में परमेश्वर ने किया है, तो उन बातों को याद रखिए। लेकिन जो बुरी बातें हैं या फिर जो कुछ ऐसी दुर्घटनाएं या फिर जो कुछ प्रॉब्लम्स आपने पहले फेस किया, उन सबको वापस याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम उन्हें ही याद रखेंगे तो आगे कभी नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर ने तभी भी आपके लाइफ में कार्य किया था। परमेश्वर ने शायद पहले भी जो है आपके घर के परेशानी में आपको मदद को किया था। एक आर्थिक स्थिति को जो है फिनेंशियली शायद आपके घर में किसी को कोई हेल्प को परमेश्वर ने भेजा था। आपके बच्चों की पढ़ाई में या फिर बच्चों की फ़ीस भरने में शायद परमेश्वर ने मदद को किया था। तो वो परमेश्वर आज क्यों नहीं कार्य कर सकता है? इस लॉकडाउन में भी जो है वो कार्य को कर सकता है। लेकिन हमें पीछे देखना जो है बंद करना ज़रूरी है। उस बात को याद नहीं करना चाहिए जो ऑलरेडी हो चुका है। अच्छी बातें हैं उनको याद रखो, परमेश्वर की कार्य, परमेश्वर की महिमा, जो परमेश्वर ने अद्भुत कार्य तुम्हारे जीवन में किया है उसे याद रखो। लेकिन बाकी सारी बातों को जो है भूल जाना सही है, उसी के बारे में सोचना नहीं है। परमेश्वर वही हमें कहने की कोशिश कर रहा है, उन सब बातों को छोड़ दो, तुम्हारी नज़र जो है आगे होने दो। आगे मतलब इस परेशानी में भी परमेश्वर तू कार्य करने वाला है, तू जो है असंभव को मेरे लाइफ में संभव करने वाला है, मेरी ज़रूरतों को आप पूरा करोगे। इस बात को करना ज़रूरी है। परमेश्वर मेरे लाइफ में कार्य को करेगा। पिछले साल मेरे लाइफ में परमेश्वर ने कार्य को किया था या फिर ऐसे कुछ आशीष को परमेश्वर ने मेरे लाइफ में दिया था, तो आगे भी जो है परमेश्वर मेरे लाइफ में इस लॉकडाउन में भी आशीष को देगा। इस लॉकडाउन में भी परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य को करेगा। आज हम इस बात को याद नहीं कर पा रहे हैं या फिर कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग को लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है मेरा इस लॉकडाउन में, क्योंकि आत्मिक रीति से जो है हम लोग जो है अपनी आंखों को बंद कर चुके हैं। हमारा नज़र केवल हमारी परेशानी में है। प्रार्थना है, आराधना है, घर पे प्रेयर चल रहा है, फैमिली प्रेयर चल रहा है, लेकिन फिर भी जो है हम उस नई चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर आपको नया चीज़ आपके लाइफ में देखना है, परमेश्वर के कार्य को आपके लाइफ में देखना है, परमेश्वर कहता है पुरानी बातों को भूल जाओ, उसे पकड़े मत रहो। शायद लास्ट महीने कुछ गलत आपके लाइफ में हो गया या फिर आपके फैमिली में कुछ गलत हो गया, उसे याद मत करो। आगे परमेश्वर आपके लाइफ में क्या कार्य करने वाला है या फिर आगे परमेश्वर मेरे लाइफ में कुछ अच्छे कार्य को करेगा, इस बात को जो है डिक्लेयर करना ज़रूरी है, उस बात को घोषित करना ज़रूरी है। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तब जो है परमेश्वर के कार्य को जो है हमारे जीवन में हम लोग देखेंगे। पीछे छोड़कर जो है आपके सोच को आगे की ओर डालिए, परमेश्वर के कार्य पर डालिए। अगर तब उसने आपके जीवन में कार्य को किया तो अभी भी जो है वो कार्य करने पर है। बस
पीछे से अपने मन को हटाइए और आगे डालिए। देखिए परमेश्वर आपके लाइफ में क्या क्या कार्य को करता है और किस तरह से अद्भुत कार्य को करता है। मैं छोटी सी एक गवाही बताना चाहूँगी। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं साइन में हूँ मम्मी के यहाँ पर एक लास्ट वीक एक टेस्टिमनी सुनने को मिला। ये लॉकडाउन में जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे फैमिलीज़ बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, ऐसे ही एक आंटी है जो हमारे सैटरडे फास्टिंग प्रेयर में घर पर आती है, तमिल आंटी है। वो भी इस लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे फैमिली में प्रॉब्लम्स को देख रही है। वो बहुत एक प्रेयरफुल लेडी है। कहीं पर भी प्रेयर हो, कोई भी लैंग्वेज का क्यों ना, वो जाती है, वो प्रेयर में बैठती है और अपने समय को बिताती है। तो उसके साथ ऐसा हुआ लास्ट सैटरडे, सडन उस दिन करंट चले गया था, करंट नहीं था और उस दिन जो है घर पे खाना बनाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, तेल बिल्कुल नहीं था। तो वो सोच रही थी, उसके पास कुछ है ही नहीं, खाना बनाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। तो उसने क्या किया, अंधेरे में बैठ के उसने कुछ नहीं है ना करके बाइबल ओपन किया। उसने बाइबल ओपन करके बाइबल पढ़ते बैठी थी। थोड़ी ही देर में जो है, जैसे कि कुछ लोगों को पता है कि पापा का ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको जो है कोई एनजीओ से कुछ ग्रॉसरीज़ का बैग मिला था ताकि डोनेट कर सके। तो वो ऐसे ही वो लेडी बाइबल पढ़ते घर बैठी थी। तो थोड़े समय में जो है मम्मी जाकर उनको वो कूपन देने गई थी कि ये कूपन ले लो और चर्च में जाओ, वहाँ से आपको कुछ ग्रॉसरीज आइटम्स मिल जाएगा, कुछ राशन का आइटम्स मिल जाएगा। तो जैसे मम्मी ने जाके उनको ये कूपन दिया और बोला आप चर्च में जाओ, ऐसा ऐसा जो है राशन है वहाँ पर आपको मिलेगा। वो लेडी इतना खुश हो गई, उसने कुछ नहीं कहा, तमिल में एक ही शब्द कहा मम्मी के सामने, आंडवरित स्तोत्रम, मतलब परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, क्योंकि उसने इतना कार्य को किया है। उसके घर पे खाना बनाने के लिए कुछ नहीं था, तेल नहीं था, वो इसलिए जो है चुपचाप बैठकर बाइबल पढ़ रही थी कि खाना क्या बनाऊँ जब कुछ है ही नहीं बनाने के लिए। तो ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर ने किसी को घर पर भेजा और उसे वो कूपन मिला ताकि जो है वो खाना बना सकती है। और वो उस दिन का खाना नहीं, उसका विश्वास और उसने जो परमेश्वर के लिए अपना एक बोलते हैं ना, अपना उसका जो मन उसने परमेश्वर को दिया, उस परिस्थिति में भी जो है वो बैठकर बाइबल को पढ़ रही थी, भले ही उसके घर पे खाना नहीं था। परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया, वो एक दिन का खाना नहीं, पूरा 1 महीने का जो है राशन उसके घर पे परमेश्वर ने आशीष को दिया है। वैसा कार्य हमारा परमेश्वर करने पर है। वो इतना खुश हो गई, वो लेडी इतने बार जो है धन्यवाद को बोल रही थी। मम्मी बता रही थी कि वो खुशी के मारे इतने बार परमेश्वर को धन्यवाद कर रही थी तमिल में। मतलब इमीडिएटली वो बैठी थी, वो बाइबल पढ़ रही थी, कितनी देर से परमेश्वर ने कार्य को भेजा है। अगर उसके लाइफ में अगर परमेश्वर कार्य कर सकता है तो आज आपके लाइफ में भी परमेश्वर कार्य कर सकता है। अगर आज आपको लगता है कि मेरा चिंता कौन करेगा, मेरा देखभाल कौन करेगा, परमेश्वर कहता है मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि तुम मेरे चुने हुए लोग हो, तो मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। और परमेश्वर, जैसे मैंने दूसरा पॉइंट कहा कि वो नए कार्य को करने पर है। परमेश्वर आज भी आपके जीवन में कुछ नई बातों को करना चाहता है, हम देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर देखना है तो पीछे जो बीती हुई बातें हैं उनको भूलना ज़रूरी है। अगर आप उन चीज़ों को आप भूलोगे, जो हो गया उसे भूल जाओगे, तो आगे देखिए परमेश्वर बहुत सारे कार्य को, बहुत सारे गवाहियों आपके जीवन में देने पर है। तो आइए हम इस 3 बातों को याद रखें और इस लॉकडाउन में पता नहीं अब और कितना दिन चलेगा, लेकिन इन 3 बातों के साथ एक विश्वास के साथ जो है हमारे जीवन को या फिर हमारे फैमिली में जो है प्रार्थना में रखकर इसमें हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ राजा सुंदर से समय के लिए। लॉर्ड पिता आपको कोटि कोटि धन्यवाद। उस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमसे बातें की, आपको धन्यवाद देती हूँ राजा। सचमुच खुदा परमेश्वर कई नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आते हैं पिता परमेश्वर। इस लॉकडाउन में पिता परमेश्वर पता नहीं पिता लोगों के मन में क्या क्या बातें आई होंगी लॉर्ड, लेकिन पिता परमेश्वर आपने फिर से एक बार याद दिलाया कि आप हमारे बारे में सोचते हैं। आपको धन्यवाद देती हूँ राजा। आप नए कार्य को हमारे जीवन
जीवन में करने वाले हैं। इस लॉकडाउन के बाद पिता हमारे कलीसिया से, हमारे WSS के मेंबर से पिता बहुत सारी नई गवाहियों को हम सुनने वाले हैं। इसलिए आपको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि एक नया कार्य उनके जीवन में आप करने वाले हैं। और इसी तरह से पिता परमेश्वर आपने हमें याद दिलाया है पिता परमेश्वर, जो बीती हुई बातें हैं हमें उसे स्मरण नहीं करना चाहिए। पिता इन सारी बातों से बाहर निकलने में आप हमारी मदद करना राजा। केवल और केवल हमारा विश्वास आप पर बने रहे और इस लॉकडाउन में सभी परिवार को संभालने के लिए आपको धन्यवाद। आगे भी संभालेंगे ये विश्वास करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुनो कबूल कर। आमीन। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ, यीशु तेरी कृपा से तेरी दया
परमेश्वर हमारे जीवनों के लिए जो भी जरूरतें हैं वो सब कुछ प्रदान करने वाला परमेश्वर है। कितना ही अच्छा है वो, कितना ही भला है। इतना ही नहीं, हमारे जीवन की हर परिस्थिति में अपनी अजीबोगरीब शांति को वो लेता है। उसका नाम है यहोवा शालोम, जो समझ से परे शांति को हमारे जीवनों में उंडेलता है। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। केवल शांति ही नहीं देता वो, लेकिन वो हमें जय उत्सव में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा निस्सी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ती हूँ। मिलकर गाएं। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीती हूँ। यीशु तेरी कृपा से अब तक मरी नहीं, जिंदा हूँ मैं। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। मिलकर गाएं मेरे साथ। वाह धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद आत्मा तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद पिता तेरा धन्यवाद। यीशु तेरा धन्यवाद। पिता तेरा धन्यवाद, आत्मा तेरा धन्यवाद। स्वर्गीय विराजमान पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते प्रभु राजा। इतना सुंदर समय, इतना सुंदर अवसर तूने हम सब WCS को नियुक्त करके दिया, तेरे नाम को धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। राजा, आज जो वचन हमने सुना है प्रभु राजा, उस वचन को पिता परमेश्वर हम एक कान से न सुनते हुए, एक कान से सुनते हुए दूसरे कान से न छोड़ते हुए पिता परमेश्वर, उस वचन को हम हमारे जीवन में ग्रहण कर सके, उसके अनुसार चल सके, ऐसे हमारे बुद्धि ज्ञान शक्ति को चलाने के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ राजा। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि आज पिता परमेश्वर ये समय को तूने दिया कि इस YouTube के द्वारा, इस YouTube के माध्यम से पिता परमेश्वर हम सारे WCS के महिलाएं इकट्ठा होकर आज इस सर्विस को चला सके, ऐसा तूने हमें बनाया प्रभु। तेरे नाम को धन्यवाद करती हूँ प्रभु राजा। पिता परमेश्वर, आज WCS में जितने बहनें इकट्ठा हुए पिता परमेश्वर, उन सब के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु राजा। पिता परमेश्वर, आगे भी आने वाले हर समय में पिता परमेश्वर इसी रीति से हर एक महिलाएं पिता परमेश्वर इस WCS में भाग ले सके, ऐसे उन सबों के मनों को तैयार करने के लिए मैं तुझसे प्रार्थना करती हूँ प्रभु राजा। पिता परमेश्वर, आज के इस आराधना से पिता परमेश्वर केवल और केवल तेरी महिमा पिता परमेश्वर, सारा आदर महिमा गौरव तुझे देते प्रभु राजा। आगे के आने वाले समय को तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु राजा। इसी विश्वास के साथ पिता परमेश्वर इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन, ग्रहण और कबूल कर, आमीन।
ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರೋ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರನ್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಯೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆಯು ಸದಾಕಾಲವು ನಿನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಜೈ ಕ್ರಿಸ್ತ.